Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So, this reading is gonna be about your life, or I should say, your next 6 months. आपके relationship, आपका career, finance, जो blessings आ रही है, what can you really expect in the next 6 months? So this is a timeless reading, meaning that whenever you're going to watch this reading, you're going to resonate with this. So let's get started with your reading now. Hello and welcome to this setup. Hamesha ki tarah we are going to have 3 piles. So in this reading, you have to choose your pile according to your first letter of your name. जो आपका नाम है, नाम आपके नाम का पहला लेटर, उस अकॉर्डिंग आपने अपनी पाइल पिक करनी है. सो पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी ऑफ अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGH. देन पाइल नंबर 2 अल्फ़ाबेट्स है IJKLMNOP. Then pile number 3 QRSTUVWXYZ. So if your name starts with A, like if let's say your name is Akshata, then you have to choose pile 1. If your name, let's say, is Megha, then you have to choose pile number 2. If your name starts with S, then you have to choose Srish. If your name starts with S and if your name is Srishti, then you have to choose pile number 3. मतलब अपने नाम के पहले letter according आपने अपना pile pick करना है. So yeah, so details सारी description में है, alphabets और time stamp सारे description में है. So click on your time stamp and you can then listen to your reading, watch your reading. So yeah, let's get started with your reading. Hello pile number 1. So this is your reading because आपका जो नाम है वो ABCDEFGH in alphabet से, in letters से शुरू हो सकता है. That's why you picked pile 1. So yeah, let's get started with your reading. Next 6 months. What can pile number 1 can expect in the next 6 months? क्या pile number 1 की life में हो रहा है next 6 months में? What can they expect? What are they exploring? What are they doing? Pile number 1. All right. We have adventure. Amazing. It says laughter, spontaneous, nature, renewal. So it shows that transformation is on the cards and you are happy, you're accepting this transformation, you're taking this transformation like a new adventure. आप इस एडवेंचर को लेकर इनफैक्ट एक्साइटेड नज़र आ रहे हो बिकॉज वी सी द लाफ्टर हेयर. आप खुशी खुशी बदलने को तैयार हो. यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदल रहे हैं और आप अब प्लान नहीं कर रहे हो इतना चीज़ों को, स्पॉन्टेनियस नज़र आ रहे हो. यू आर अ पर्सन पाइल 1 जो चीज़ों को प्लान करता है, स्ट्रैटेजाइज करता है, बट हेयर इट शोज़ कि अब आप बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो एंड यू आर हैप्पी, यू आर मोर हैप्पियर being spontaneous. and आपका एक renewal time है, आप फिर से renew हो रहे हो. you're becoming a better and a new version of yourself. आपकी nature में change आ रहा है. again the people you're going to meet in the next 6 months, again वो पुराने लोगों से अगर आप मिलो तो कहेंगे you're completely changed. अभी कुछ time पहले जो मिले थे you were a different person but now you seems to be a completely another person. So ये change यहाँ पर नज़र आ रहा है. You're really happy. And also with adventure card I see athleticism coming in. आपकी body काफ़ी ज़्यादा active नज़र आ रही है. In fact body काफ़ी ज़्यादा flexible नज़र आ रही है. आपके thoughts, आपके विचार जो है काफ़ी flexible है. ये नहीं है कि oh this is right, this is the right way only, this is the wrong way. No, you're open. You're open to new ideas, you're open to new ways. और again आपकी खुद की बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके माइंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी है. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं. तो आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो एंड यू आर नॉट सेइंग दैट दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों का वे आप रॉन्ग नहीं कह रहे हो. you're saying okay, you're saying all right,
लेट मी डू थिंग्स इन माई वे और लेट मी ट्राई योर वे नाउ. बट आप कभी भी ऐसा नहीं कर रहे इन द नेक्स्ट 6 months कि आप नई चीज़ों को या दूसरे लोगों के आइडियाज़ को रॉन्ग कहो या क्रिटिसाइज करो. आप वो पर्सन नहीं हो या वो पर्सन नहीं बन रहे. यूर एक्सेप्टिंग अदर पीपल, यूर एक्सेप्टिंग चेंज. प्लस आप एथलेटिक, आप फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हो बॉडी वाइज, physical body wise. Then we have manifest card. It says dreams, journal, moon, sleep. यहाँ पर sleep बहुत अच्छी नज़र आ रही है. आपका rest proper हो रहा है. And by rest sleep, what I mean is कि अगर आप रात को सोना चाहते हो तो आप रात को सो रहे हो, दिन में सोना चाहते हो तो दिन में सो रहे हो. अपनी नींद आप किसी ना किसी तरह कंप्लीट ज़रूर कर लेते हो और आप अपनी नींद को एक प्रायोरिटाइज करते हो. अगर रात को प्रॉपरली जैसे लेट हो गया सोने में तो आप वो नींद को जो अगले दिन दोपहर को या जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप कवर अप कर लेते हो. तो आप अपनी स्लीप को इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप रेस्ट प्रॉपर ले पा रहे हो. एंड ड्रीम्स एंड जर्नल्स ये शो करता है दैट यू आर ऑल्सो इनटू राइटिंग. you're also into writing. You are maybe again journaling, diary writing. You're doing that too. आप अपने दिन के बारे में लिख रहे हो कहीं एक पीस ऑफ पेपर पर, एक डायरी पर, या फिर आप एक हैबिट बना रहे हो. जैसे कई लोगों के अंदर ये एक हैबिट होती है या डेवलप करते हैं हैबिट कि मैंने पूरे दिन में क्या करा. इससे हमारी मेमोरी इंक्रीज होती है, शार्प होती है और हम रियलाइज़ करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज पूरा दिन हमने क्या किया, क्या सोचा, क्या फीलिंग आई. सो आप अपने थॉट्स को लेकर और मैंने पूरा दिन क्या करा क्या नहीं करा उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो एट नाइट टाइम, या यू आर राइटिंग डाउन इट. तो ये यहाँ नज़र आ रहा है. एंड इवन विद द मैनिफेस्ट कार्ड नंबर 40, इट ऑल्सो शोज़ कि जो आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी चाहत है, कोई जो आपकी होप्स, विशेस, डिज़ायर है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट हो रही है. अगेन इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स, इट्स अगेन बिकॉज ऑफ योर ओन हार्ड वर्क. आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो. एंड देन वी हैव द वॉरियर कार्ड. अगेन इट सेज फोकस, असर्टिवनेस, राइज, एक्शन. अगेन इट शोज़ कि जैसे मैंने कहा अभी कि आपके खुद के हार्डवर्क, आपके खुद के एफर्ट की वजह से आप वो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो. व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, यू आर नाउ डूइंग इट इन द नेक्स्ट 6 months. अगेन जो एक वॉरियर है, एक जो सोल्जर है, उसको एथलेटिक तो होना चाहिए ना. वॉरियर का, सोल्जर का पेट थोड़ी ना ख़राब होता है या वो इतना बीमार नहीं पड़ता क्योंकि वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है. जो सोल्जर्स को जब कोई सोल्जर ट्रेनिंग पर होता है तो उसको मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं, हैंस वो फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाता है. सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बट मेंटली भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वो बनाते हैं. आपका मेंटल जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड यू आर ओपन, यू आर ईजी विद योर नेचर. तो क्या हो गया, उसने मुझे ये कह दिया, इट्स फाइन, इट्स ओके, रहने दो, इसको जाने दो. सो आप वो अगर कोई गलत बात भी है तो उसको एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, अपने चित्त पर नहीं बिठाते, अपने मन पर नहीं बिठाते. और खुशी आपकी गायब नहीं होती है. जो खुशी अगर वो खो गई तो यानी सब कुछ खो गया. पर यहाँ पर खुशी आपकी और एक उमंग, उत्साह लाइफ को जीने का, एक पैशन लाइफ को जीने का, वो नज़र आ रहा है. एंड विद द वॉरियर यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर होप्स, विशेस, डिज़ायर्स, योर ड्रीम्स. Even if the other person says that, oh, this cannot happen, ये हो ही नहीं सकता, but you're like, no, it will happen. Maybe आप उस समय पर उस पर्सन को कुछ ना कहो क्योंकि क्यों किसी के साथ अपना रिलेशन ख़राब करना. पर मन आपका और दृढ़ संकल्प हो जाता है कि तो मैंने करना ही करना है. तो आप अपने जो पॉजिटिव होप्स, विशेस, डिज़ायर है उसको लेकर एक वॉरियर हो, उसको प्रोटेक्ट करते हो. एंड आप फोकस, पावर टू फोकस, एकाग्रता की शक्ति वो आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है. असर्टिवनेस कि मैंने करना ही करना है, इस तरह का थॉट प्रोसेस नज़र आ रहा है. एंड यू आर राइजिंग इन लाइफ. नेक्स्ट 6 months इज़ अबाउट राइजिंग इन लाइफ. एंड इट सेज एक्शन. तो ऑफकोर्स आप एक्शन ओरिएंटेड तो नज़र ही आ रहे हो. एक सोल्जर हमेशा एक्शन के लिए रेडी रहता है. एक एक्टर जैसे ही डायरेक्टर ने बोला एक्शन, रेडी रहता है, अपनी लाइंस को प्रिपेयर उसने पहले ही करा होता है. और इनफैक्ट जैसे कई लोग स्टैंड अप कॉमेडी में होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट भी जोक बनाना पड़ता है और इम्प्रोवाइज करना पड़ता है. सो यू आर ऑल्सो रेडी लाइक अ कमेडियन. यू आर रेडी टू शाइन एंड राइज. So ये यहाँ पर information है. Let's pull some specific cards for you. Pile number 1 about your career. जिस भी stage of life पर हो, मतलब
जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है इन द नेक्स्ट 6 months? Career wise. Okay, we have the Wheel of Fortune. Wheel of Fortune also says it represents Bhagya, it represents luck, fortune, it represents एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एक ओल्ड एंड हो रहा है, एंड इट शोज कि अच्छा समय, लाइक गुड टाइम इज ऑन द कार्ड्स. सो आप पॉजिटिव चीज़ें जो हो यहाँ पर लेकिन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉजिटिव चीज़ें अपने करियर में. लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स एज वेल अबाउट करियर. We have the Six of Wands. Six of Wands shows victory. It shows getting an award reward, getting a certificate, or getting some, again, trophy, getting some reward, money-wise reward. तो यू आर गेटिंग दैट. कुछ विक्ट्री आपके हाथ लग रही है. एजुकेशन में तो एजुकेशन में कुछ विक्टोरियस बन रहे हो. एवरी वन इज़ चेयरिंग अप फॉर यू, एवरी वन इज़ प्राउड ऑफ यू. योर फ्रेंड्स आर फीलिंग सो हैप्पी दैट दे आर फ्रेंड्स विद यू. आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपके पेरेंट्स, आपके अगेन जो लव्ड वंस हैं, दे आर रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज यू आर अचीविंग समथिंग. यू हैव अचीव्ड समथिंग इन द नेक्स्ट 6 months. चाहे आप एजुकेशन में हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो, यू आर राइजिंग अप. एंड अगेन ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये कि भाई हाँ, लक एंड फॉर्चून आपके साइड में है. समय आपका साथ दे रहा है, आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं. जब समय साथ देता है और हम अपने 100% एफर्ट डालते हैं तो सक्सेस ज़रूर होती है, और वही सक्सेस कार्ड्स पर यहाँ पर नज़र आ रही है. कुछ विक्ट्री यहाँ पर ज़रूर हो रही है करियर वाइज. अबाउट योर फाइनेंसेस, so we have the emperor here shows कि finances बहुत 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 अच्छे हैं. जो king होता है वो तो अमीर होता ही है, वो तो rich होता ही है. जो emperor होता है वो तो rich होता ही होता है. so यहाँ पर आपका मनी जो है ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है. इनफैक्ट आप अपना मनी राइट जगह पर इन्वेस्ट कर पा रहे हो, जो नेक्स्ट 6 months से इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके डिसीजंस इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत अच्छा है कि भाई मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मुझे किसी लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मेरे को बस बैंक की एफडी करा देनी चाहिए. सो योर डिसीजंस टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग मनी, दे आर रियली अमेजिंग, दे आर रियली गुड फॉर लॉन्ग टर्म. और आप एम्परर कार्ड ये भी शो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट 6 months. और एम्परर अगेन शोज ग्रोथ ऑफ मनी इज हैपनिंग, getting the right amount of money for your craft. जो आपने काम करा है उसका आपको right money मिल रहा है. So that's there. Then about your personal life, आपकी personal life, आपके relationships, some information about it. So pile 1, we have Knight of Cups. Knight of Cups shows ये again ये आपकी एनर्जी है अपने relationships को लेकर. मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप अगेन रिलेशनशिप में आने वाला नो, दैट्स नॉट what I'm saying. Like Knight of Cups is your energy. आप बहुत अगेन पैशनेट, उमंग उत्साह वाले यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड दूसरे लोगों को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, जैसे भी आप दिखते हो, whatever your physical appearance is, काले गोरे पतले मोटे, whatever you are, pile 1, आप बहुत ज़्यादा दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हो और आप बहुत अच्छे कनेक्शंस बना रहे हो दूसरों से. पर्सनल लाइफ में लाइक पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यू आर मेकिंग न्यू acquaintances, your relationship with your family or with your friends is becoming really good, क्योंकि आप दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाते हो, क्योंकि आप दूसरों को आगे बढ़ाते हो. आप अपने आप मतलब खुद ही आगे नहीं बढ़ी जा रहे ज़िंदगी में, पर दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ा रहे हो. एंड we like this is what we love. We humans are social animals. हम कितनी देर अकेले रह लेंगे, आखिर कितनी देर. हाँ, कहने को तो हम ये ज़रूर कह देते हैं जिस इंसान ने अकेला जीना सीख लिया वो सबसे बेस्ट है, पर है तो इंसान एक सोशल एनिमल ही. और यहाँ पर भी विद द नाइट ऑफ कप्स ये नज़र आ रहा है कि आपका वो जो एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है वो चमक कर बाहर आ रहा है. वो बहुत अगेन यू आर अट्रैक्टिंग अदर पीपल टुवर्ड्स यू एंड यू नो हाउ टू मेक रिलेशनशिप्स वर्क. चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप. आप बड़े सुलझे हुए नज़र आ रहे हो रिलेशनशिप के मामले में, यानी जो आप बोल रहे हो यू मीन इट. ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ है और मेरे ज़बान पर कुछ और है. मतलब यू आर नॉट लाइक दिस. जो आपके ज़बान पर है वही आपके मन में है, और अच्छा ही है आपके मन में, और अच्छा ही आप मुंह से बोल रहे हो. सो एक पॉजिटिविटी, एक पैशन जीने का ये नज़र आ रहा है. आप दूसरे लोगों को भी इनफैक्ट मोटिवेट कर रहे हो टू लिव लाइफ इन अ मोर ब्यूटिफुल वे.
लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, आप दूसरों को ये अंडरस्टैंड करा पा रहे हो. अबाउट योर हेल्थ, या अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. वैसे तो यहाँ बहुत अच्छी नज़र आ रही है फिजिकल और मेंटल हेल्थ, but let's pull card here as well. So we have the world, again a major arcana. ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये शो कर रहा है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत जागृत या जागरूक हो. मतलब यू आर रियली, यू नो व्हाट काइंड ऑफ फूड आई शुड ईट एंड व्हाट आई शुड नॉट. जैसे यू नो कि क्या चीज़ें आपको सूट करती है. हर अच्छी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए अच्छी हो. सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या खा के मैं ठीक रहती हूँ और क्या खा के मैं ठीक नहीं रहती. सो यू हैव दिस कॉन्शियसनेस, यू आर ईटिंग कॉन्शियसली, एक कॉन्शियस माइंड के साथ आप ईट करो. ओवर ईटिंग इनफैक्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहा है. एक सेल्फ कंट्रोल आपके नज़र आ रहा है. वर्ल्ड कार्ड ये भी शो करता है कि यू हैव लेट गो ऑफ योर पास्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नाउ. हर किसी को आज की डेट में मेंटल हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस, टेंशन है. ये बड़ा आजकल नॉर्मल हो चुका है. वर्ल्ड ये शो करता है कि आपने वो सर्कल जो है अगेन वो घूम लिया है आपने. आप 360 हो चुका है वो. सो 360 डिग्री आपने घूम लिया. नाउ अगेन आप ज़ीरो से शुरू करो, यानी आपको स्ट्रेस टेंशन नहीं है. हाँ, आगे चलते चलते आप अपने अंदर स्ट्रेस टेंशन ले आओ, वो अलग बात है, पर आप फिर से एक ज़ीरो कॉन्शियसनेस से शुरू कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ. आपको ऐसा स्ट्रेस टेंशन नेक्स्ट 6 मंथ्स में नहीं नज़र आ रहा है. आप बहुत अपने आप को सेट करके रखते हो, तभी आपके रिलेशनशिप बहुत सेट निकल रहे हैं. यानी हर रिलेशनशिप आपका अच्छा है क्योंकि आप अच्छे हो. वर्ल्ड कार्ड पॉजिटिविटी को, गुड हेल्थ को शो करता है. और ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट इंडल्जिंग इन जंक फूड. नो, यू आर ईटिंग जंक एज वेल, बट यू आर ईटिंग इट इन सर्टन अमाउंट. तो एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीते हुए नज़र आ रहे हो. और फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें तो वो भी है यहाँ पर, बिकॉज अगेन ये कार्ड्स भी वॉरियर वाले आए थे, एडवेंचर वाले आए थे. इट शोज, ये कार्ड्स एक एक्टिव लाइफस्टाइल को शो करता है. तो आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 घंटा एक्सरसाइज करो और पूरा दिन बैठे रहे, ऐसा नहीं है. एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक बिजी टाइम आपके लिए नज़र आ रहा है नेक्स्ट 6 months में. You're exercising as well, you're doing something, you're going to gym or you're doing yoga, you're doing some physical activity for sure. और साथ में एक लाइफस्टाइल एक्टिव है, एक ही जगह पर नहीं बैठे हुए, एक्टिव लाइफस्टाइल है. एंड इनफैक्ट यू आर इंजॉइंग द वेदर, वॉट एवर वेदर, वेर एवर यू आर लिविंग, वहाँ का जैसा भी वेदर है, यू आर इंजॉइंग दैट वेदर. So that's great, that's amazing, that's beautiful. Last but not the least, यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है स्पिरिट से नेक्स्ट 6 months के लिए. सो वी हैव ड्रीम्स. इट सेज बिलीव इन योर ड्रीम्स. ये हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी इन 3 कार्ड में से किसी एक कार्ड में. ड्रीम्स दैट इवन इफ द अदर पीपल से दैट योर ड्रीम इज़ नॉट सो प्रैक्टिकल, बट आप जो हो अंदर ही अंदर इस थॉट को, उस ड्रीम को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उस विश को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हो. क्योंकि संकल्पों की शक्ति, इसी को ही हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कि ऐसा संकल्प रचा हमने, ऐसा थॉट हमने पावरफुल क्रिएट करा कि वो सच हो गया. यू नो, ये भी तब होता है जब हमारे ज़्यादातर थॉट्स पॉजिटिव हो, वेस्ट थॉट्स ना चले और नेगेटिव तो बिल्कुल ही ना चले. तब जो हम सोचेंगे वो चीज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में हो जाएगी. इसी को ही साधना कहते हैं. आज की डेट में खुश रहना वो भी एक तपस्या है. यहाँ पर वो खुशी की तपस्या आपकी नज़र आ रही है. आप खुश रह रहे हो, you are happy, you're really happy, and because you are happy you're able to fulfill your dreams. तो कोई ड्रीम यहाँ पर स्पेशली जो करियर वाइज ड्रीम है वो ज़रूर पूरा हो रहा है इन द नेक्स्ट 6 months. सो बिलीव इन योर ड्रीम्स, ये आपके लिए मैसेज है. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. And astrologically अगर हम देखें तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ पाइसिस, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, और फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. सेजिटेरियस में we have the nakshatra of Moola, Purva Ashada, Uttara Ashada.
इनफैक्ट जो सन रूल नक्षत्र है जैसे कृतिका हो गया, उत्तरा आषाढ़ा हो गया और उत्तर फाल्गुनी जो कि लियो और वर्गो में होता है, लियो में होता है और फिर वर्गो में स्पिल करते हैं उत्तर फाल्गुनी, ये भी प्रोमिनेंट यहाँ आपके चार्ट में नज़र आ रहा है क्योंकि सन काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि सन पॉजिटिविटी है, सन गुड हेल्थ है, सन किंग है, एम्परर है, एंड सन गेट एक्सॉल्टेड इन एरीज, दैट्स व्हाई आई सेड एरीज विल बी प्रोमिनेंट. तो इवन लियो और वर्गो साइन भी जो है इसमें भी आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा कारका असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड और सम अदर प्लैनेट will be placed in these signs in the nakshatras which I just told you. लियो में अगेन माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पेल करता है, वर्गो में हस्ता, चित्रा. तो ये यहाँ पर नक्षत्रस साइंस D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में prominent होंगे. So yeah, that was it. This was the reading for you. File number 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can get them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1 tab tak ke liye be positive. Stay happy. हेलो पायल नंबर 2. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पायल क्योंकि आपका जो नाम है वो IJKLMNOP इन लेटर्स में से किसी एक लेटर से शुरू होता है आपका नाम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Your next 6 months, what can pile number 2 can expect in the next 6 months? What are they doing? How life is treating them? पाइल नंबर 2 क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है, व्हाट आर दे बिजी इन और व्हाट आर दे डूइंग. पाइल नंबर these 3 cards. Okay, pile number 2 we have knowing. All right, it says divination, it says converse. It says energy, free will. So with the knowing card, I feel that you're able to predict your future. I guess pile number 2, आप में से काफ़ी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो, इवन हैंड रीडिंग एज वी सी, एंड यहाँ पर भी टैरो कार्ड है. या you guys are interested in these things and you can even predict for other people, और आप अपने लिए भी predict कर पा रहे हो यहाँ पर. या फिर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोई टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहे हो या कोई एस्ट्रोलॉजी रीडिंग अपने लिए करवा रहे हो किसी, अगेन फ्रॉम मी और फ्रॉम समवन एल्स, बट यू कैन गो टू एन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर और हाथ देखने वाले जो है उनके पास आप जाओ. सो यू एक्चुअली नो योर फ्यूचर. और या फिर आप अगेन फ्यूचर देख पाते हो, आपकी इंट्यूशन ऐसे, आपके ड्रीम्स आपको आते हैं, व्हाटएवर इट इज़, यू आर एबल टू नो योर फ्यूचर. और आपका इंट्यूशन, आपका जो इंटरेस्ट है टैरो, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म में और ज़्यादा बढ़ रहा है. इनफैक्ट आई सी यू बाइंग स्पिरिचुअल बुक्स, चक्रा रिगार्डिंग बुक्स, एस्ट्रोलॉजी बुक्स, आप वो खरीद रहे हो. ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है. अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर रहे हो इन सब्जेक्ट्स में, इन 8th हाउस रिलेटेड, साइन ऑफ स्कॉर्पियो रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आप अपना जो हो इंटरेस्ट, अपना नॉलेज बढ़ा रहे हो. अगेन 8th हाउस स्कॉर्पियो से एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टैरो, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, तंत्र, और अगेन ये हैंड रीडिंग, इन सब चीज़ों को शो करता है क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं है, तो आप इनमें अपना नॉलेज बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो. देन वी हैव हार्मनी. इट सेज बैलेंस, एनर्जी, ब्रेथ एंड फ्लो. यहाँ पर भी एनर्जी का कार्ड है, यहाँ पर भी एनर्जी का कार्ड है. सो इट डज शो कि आपके अंदर नंबर 1 बहुत एनर्जी है, आपके अंदर एक प्राण शक्ति है. अगेन योर ब्रीदिंग, वाइल योर ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग छोटी नहीं है. कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अपने ब्रीदिंग पर बहुत फोकस करते हो. आप कहीं ना कहीं योगा एक्सरसाइज ये कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, जिससे आप अपनी ब्रेथ बढ़ाते हो. अगर किसी को अपनी लाइफ बढ़ानी है तो उसको अपनी प्राण शक्ति, उसको अपने लंग्स को ठीक रखना चाहिए बाय डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज. किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखनी हो कि भाई ये कितने साल जीवित रहेगा, भाई
कितने साल आत्मा इसकी इस शरीर में रहेगी, तो उसके हम ब्रेथ से वो चीज़ पता कर सकते हैं कितने साल ये इंसान ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि अगेन लंग्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स हार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बट हमारी प्राण शक्ति, प्राणा अगेन इज जुपिटर. So even Jupiter placement can tell a lot about ourselves. In Nandi Nadi, Jupiter is the Jiva Atma, Jiva Karaka. Chara Atma Karaka भी इतना कंसिडर नहीं करा जाता नंदी नाड़ी में. जुपिटर को कंसिडर करा जाता है एज द नेटिव. सो इवन एंड यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर इन योर चार्ट पाइल नंबर 2. यानी जुपिटर एग्जॉल्टेड है, या जुपिटर साइन ऑफ एक्वेरियस में प्लेस्ड है, या जुपिटर 4th हाउस में प्लेस्ड है, यानी अगेन जुपिटर हैव लॉट ऑफ दिग्बाल है, जुपिटर अपने साइन में प्लेस्ड है, या जुपिटर को बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहे हैं. सो दिस दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट कैन बी इन योर चार्ट. या जुपिटर असेंडेंट में प्लेस्ड है, जुपिटर तो इस तरह की प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी पाइल नंबर 2. एंड अगेन विद द हार्मनी इट शोज कि आप नेक्स्ट 6 months में 2 चीज़ें अपने साथ रख रहे हो. एक चीज़ का दूसरा मतलब आपके पास 2 फ़ोन है, या आपके पास 2 लैपटॉप्स है, या 2 कंप्यूटर्स है, या 2 चीज़ें हैं, मतलब ट्विन. सो दैट्स ऑल्सो देयर. एंड ऑफकोर्स आपकी ब्रीदिंग या आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, न्यू आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, आपका सेंस ऑफ स्मेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. अगेन द नक्षत्र लाइक मृगशिरा कैन ऑल्सो बी क्वाइट प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. मृगशिरा जो है साइन ऑफ टॉरस और साइन ऑफ जेमिनी में होता है. सो इसमें भी साइन ऑफ टॉरस, साइन ऑफ जेमिनी में प्लैनेट प्लेस्ड होंगे, या मृगशिरा नक्षत्र में प्लैनेट प्लेस्ड होंगे. एंड इवन वी सी द यिंग यांग. सो इट डज शो कि वो जो फेमिनिन एनर्जी और जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका आपके अंदर एक बैलेंस है. इट इज़ क्वाइट बैलेंस. इट शोज़ कि आपका एनालिटिकल लॉजिकल माइंड भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है. एंड इवन विद द हार्मनी इट शोज़ कि आप म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. पाइल नंबर 2 आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर बजाना आता है, या फिर आपको गाना गाना बहुत अच्छे से आता है. यू गाइज आर ऑल्सो द पीपल हु आर गोना बी इंटरेस्टेड इन क्लासिकल म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक, और जो गले की मुर्कियाँ हैं. अगेन क्लासिकल म्यूज़िक यू विल रियली इन्जॉय. आप अगेन आपके घर पर कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होगा. एंड अगेन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस कैन ऑल्सो बी प्रोमिनेंट, क्योंकि इनमें श्रावण धनिष्ठा नक्षत्र होते हैं. सो श्रावण इज इन कैप्रिकॉर्न, देन धनिष्ठा जो है वो भी कैप्रिकॉर्न में होता है, फिर स्पिल करता है एक्वेरियस में. तो इनमें भी प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन साइंस, इन नक्षत्र इसमें. एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी वेरी गुड स्पोक्स पर्सन. आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आप एक स्टेज पर हो, आप कुछ बोल रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन समथिंग और सम ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ हैपनिंग. यू आर गेटिंग फेम बिकॉज ऑफ योर स्पीच, और बिकॉज आपकी गाना गा रहे हो, या फिर आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, तो उसकी वजह से भी दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करें, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं. सो यू आर ऑन एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन सी यू, वेयर पीपल कैन लुक अप टू एंड दे आर एडमायरिंग यू. लास्ट यहाँ पर है क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टलाइन. या इट सेज अगेन एनर्जी, वंडर, अलाइव, beauty. So you're becoming more beautiful, or you're becoming more handsome. आपकी हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है, तो ऑफकोर्स आप यू आर शाइनिंग फ्रॉम विद इन. तो आपके वो चेहरे पर नज़र आता है, गुड हेल्थ चेहरे पर नज़र आ रही है. फीका फीका चेहरा नहीं, एकदम खुशनुमा, और वो ग्लो कर रहा है आपका बॉडी, आपका स्किन, आपका फेस. एंड दूसरे लोग आपकी ब्यूटी को और आपके जो स्किल्स है उसको बहुत अप्रिशिएट करें. वी सी द एमेथिस्ट है. एमेथिस्ट जो है, जैसे मेरे को तो एमेथिस्ट ही लगता है, इट कैन ऑल्सो बी या. सो एमेथिस्ट इज़ अ स्टोन विच इज़ अ हीलिंग स्टोन. सो जैसे आई एम वियरिंग एमेथिस्ट, सो या एमेथिस्ट एक हीलिंग स्टोन है, और वो चाहे वो इमोशनल टर्मोइल से, या इमोशनल वाउंड से, या फिर कोई फिज़िकली आप किसी फिज़िकल डिजीज़ से डील कर रहे हो, तो उससे भी हीलिंग प्रोवाइड करता है. कूलिंग हीलिंग स्टोन है ये. सो इट डज शो कि आप लिटरली एमेथिस्ट भी बाय कर सकते हो इन अ ब्रेसलेट फॉर्म, और इन ऐसे स्टोन्स में आप बाय कर सकते हो. दीज आर ऑल्सो एमेथिस्ट. सो या यू आर डूइंग दैट. क्रिस्टल्स में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, और
अपने जो घर है जहाँ पर आप रहते हो, जो आपका कमरा है, उसको बहुत एक पॉजिटिविटी आप दे रहे हो, उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सजा रहे हो, उसको बड़ा ही साफ़ सुथरा रख रहे हो. इनफैक्ट आप ऐसे पोस्टर्स लगा सकते हो जो बड़े मोटिवेशनल हों, और जब भी फिर आप उठो और रोज़ सुबह उठो और उन पोस्टर्स को देखो तो आप मोटिवेटेड महसूस करो. तो यू आर डूइंग दैट एज वेल टू योर स्पेसिफिकली योर बेडरूम, द प्लेस यू स्लीप. तो ये भी है. बट या यू हैव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड हीलिंग एनर्जी विद इन यू. तो आपका तभी ये जो नोइंग वाला कार्ड है, आपकी टेरो इंट्यूशन, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड यू आर एबल टू हील अदर पीपल. यू कैन ऑल्सो बी अ रेकी हीलर. और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, बड़े पावरफुल नेक्स्ट 6 मंथ्स है आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर भर भर के वो हीलिंग एनर्जी है जिससे आप दूसरे को हील कर देते हो कुछ ही मिनटों में. कुछ आप ऐसी बात कह सकते हो, आपके वाइब्रेशन में वो पर्सन जब एंटर करता है तो दे फील रियली हील्ड. तो ऐसी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग. that's there. People see that you're so energetic, you're so positive, you are you have this energy जो दूसरे लोगों को चाहिए. वो नहीं रह सकते, दूसरे लोगों को ये एनर्जी चाहिए. यू हैव दिस एनर्जी विद इन यू जो बहुत पॉजिटिव और बहुत एनर्जेटिक है और बहुत अच्छी है, प्लेजेंट है. सो this is what we are getting. And even with the number 4 card, number 4 एक nourishment और sleep, rest, rejuvenation इसको शो करता है, और सबकॉन्शियस को भी शो करता है कि भाई सबकॉन्शियस में आपके चल क्या रहा है. तो उसको भी यू आर एबल टू हील. आप अपने आप को भी हील कर पा रहे हो और दूसरों को भी हील कर पा रहे हो. सो दिस इज द पाइल ऑफ हीलर्स for sure. Pile number 2. So yeah, let's pull some specific cards about your career, about your money, personal life and health. So career के बारे में पहले हम कार्ड पुल आउट करेंगे. पाइल नंबर 2. आप एजुकेशन में हो, जॉब बिजनेस में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, आपका करियर कैसा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में. All right. I don't know, I feel many of you are into law as well. You're doing law as well, so yeah. Okay, we have the moon here. The moon here shows कि आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर निकल रहे हो अपनी एजुकेशन में. इनफैक्ट अगर आप एजुकेशन में हो, एकेडमिक्स में हो, तो आप अपने एजुकेशन को भी देख रहे हो और साथ में कोई जो कंपटीशन या जो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो चलती रहती है स्कूल में, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हो. यूनिवर्सिटी में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और वहाँ पर भी आप अपना 100% दे रहे हो और अपने एजुकेशन में भी अपना 100% दे रहे हो. जॉब बिजनेस में हो तो अगेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जो चीज़ आपको बड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आती थी, आप ये रियलाइज़ करते हो असल में वो बहुत ज़्यादा ईजी थी. आपने सोच के उसको पहाड़ बना रखा था, उसको बहुत बड़ा कोई इशू बना रखा था. पर अब यू रियलाइज़ कि इट्स द टाइम टू डू दैट वर्क. एंड या जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा. एंड यू नो पाइल नंबर 2 कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आगे करी जा रहा हूँ या करी जा रही हूँ, मतलब बाद में करूँगी या बाद में करूँगा, ऐसे करी जा रही हूँ और इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी. एंड देन यू रियलाइज इट्स एक्चुअली वेरी ईजी. सो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. मून कार्ड हमारा अगेन इंट्यूएशन को शो करता है. तो आपका इंट्यूटिव माइंड आपको बड़ा हेल्प करेगा अपने करियर में. सिर्फ आपका लॉजिकल माइंड नहीं, आपका इंट्यूएशन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा करियर में. बिकॉज देयर कैन बी सर्टन थिंग्स जहाँ पर आपका लॉजिक काम करना बंद कर जाए, तो वहाँ पर इंट्यूएशन आपको बहुत राइट तरीके से, बेस्ट इनफैक्ट तरीके से गाइड करेगी. सो लिसन टू इंट्यूएशन इन टर्म्स ऑफ career in the next 6 months. It is guiding you in the right direction. And जो आप let's get a card for your money. Okay, we have the hermit here. So hermit here shows कि आप अपना मनी जो हो सेव कर रहे हो और अपना मनी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो. like you can buy a farmhouse or you are if it's not a farmhouse, तो आप अपने घर में या जैसे मर्जी प्लांट्स ग्रो कर रहे हो. आप अपने कहीं ना कहीं नर्सरी जा रहे हो जहाँ पर अगेन प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, और कोई प्लांट आप ख़रीद कर लेकर आ रहे हो. एंड ये वो प्लांट्स है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. अगेन वो ऑक्सीजन देने वाले, या फिर लेमन का है वो पौधा, या फिर वो ऑरेंज का है, या फिर ऐसे पौधे जो कुछ अच्छा फ्रूट दे सकते हैं. तो
यू एंड अगेन लेमन का जो पौधा होता है, नींबू का जो पौधा होता है, उनकी उनकी खुशबू, उनके पत्तों की खुशबू भी एक बहुत डिफरेंट सी होती है, बहुत अच्छी होती है, सिट्रस होती है. सो यू मे बाय दीज काइंड ऑफ प्लांट्स एंड यू टेक केयर ऑफ देम एज वेल. तो आप अपना मनी यहाँ पर डाल रहे हो. एंड इनफैक्ट आप अपना मनी जो नॉलेज खरीदने में, यानी बुक्स खरीदने में यूज़ करो. बिकॉज हर्मिट इज़ अगेन अ कार्ड जो एक ओल्ड वाइज पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, एक 70-80 ईयर्स ओल्ड को रिप्रेजेंट करता है. एंड यूजुअली what we see, old people are the people who have interest towards gardening, who have interest towards reading books or at least newspaper. So ये एक बड़ी mature activities है. So you are गिविंग योर एनर्जी इन दीज मेच्योर एक्टिविटीज़. जो भी नॉलेज या जो बुक्स आप बुक्स खरीद रहे हो और उनको रीड कर रहे हो, बड़ों की तरह आराम से अपनी चेयर पर बैठ के वो बुक आप रीड कर रहे हो. और इनफैक्ट आपका गार्डनिंग में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा, तो इनमें आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. ये सच में एक इन्वेस्टमेंट ही है. बुक्स खरीदना या प्लांट्स लेना इन्वेस्टमेंट है लाइफ की. सो यू आर डूइंग दैट. आपका मनी यहाँ पर जा रहा है. एंड अगेन हर्मिट ये शो करते हैं यू आर सेविंग मनी एज वेल. आखिर कितनी किताबें आप खरीद लोगे, कितनी प्लांट्स आप खरीद लोगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा इन चीज़ों को खरीद के. सो इट डज शो कि आपकी सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा है. क्योंकि एक जो बूढ़ा इंसान है वो पूरा लाइफ अपना काम करता है. एक इंडियन मेंटालिटी भी यही है कि सेव करना है, सेव ही करना है, कुछ खरीदना नहीं है, कोई लग्जरी नहीं, बस सेव करना है. एक इंडियन मेंटालिटी है. तो जैसे जैसे बड़े होते हैं हम इंडियंस, तो हम थोड़ा अमीर होते जाते हैं. जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास हमेशा पैसे रहेंगे, दादा दादी नाना नानी हमेशा पैसे रहेंगे उनके पास. तो इट शोज़ कि वो सेविंग का जो है वो आपके अंदर मेंटालिटी आ रही है कि सेव करना है. और आप काफ़ी सारा मनी जोड़ भी लोगे इन द नेक्स्ट 6 months, ये भी नज़र आ रहा है. सो या एंड अबाउट योर रिलेशनशिप्स, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, इट इज़ योर एनर्जी. मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप एक रिलेशनशिप में आने वाले हो. नो, दिस इज़ नॉट अ लव रीडिंग. इट्स योर एनर्जी टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स, टूवर्ड्स योर लव्ड वंस. आपकी एनर्जी पर्सनल लाइफ की. सो वी हैव द नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स हेयर इज शोइंग कि आपका जो ट्रस्ट है दूसरों पर, अगेन अपने पेरेंट्स पर या अपने फ्रेंड्स पर या अपने सिबलिंग्स पर, जो भी मतलब आपके जान पहचान के लोग हैं, उन पर आपका ट्रस्ट बढ़ रहा है, उन लोगों का आप पर ट्रस्ट बढ़ रहा है. आप लोग एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं करते या एक दूसरे को बड़ा एक विश्वास से चलते हो और स्नेह प्यार से चलते हो. और इनफैक्ट जो लंबे रिलेशनशिप है, मतलब जिन लोगों को आप सालों से जानते हो, उनके साथ और भी अच्छा स्नेह प्यार का रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है. नाइट ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है कि आप बड़ा वैल्यू कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को, अपने परिवार को या अपने even relatives को. Even though most of us do not have a very good relationship with the relatives, but with the Knight of Pentacles, ये again एक बड़ी old mature energy है. Knight of Pentacles is a Saturnian card. So Saturn को सबसे ज़्यादा रिश्तों की कदर है, क्योंकि Saturn के जो खुद के माँ बाप थे, कोई ज़्यादा खास उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा, या जो यामा यामी थे उनके साथ भी कुछ खास इंटरेक्शन नहीं रहा. So he was left alone. So he knew what is the value. He knows what is the value of good relationships. So Knight of Pentacles ये शो करता है कि आपको पता है, आपको समझ है, आपको रियलाइजेशन है कि रिलेशनशिप ज़िंदगी में कितने अच्छे. सिर्फ मनी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट मनी भी है, बट इट्स नॉट अबाउट money only. Happiness also comes from good relationships. So you're understanding the value of relationship. You're giving time to your relationship. और आपकी जो एनर्जी है वो हर एक रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने वाली नज़र आ रही है. अगर कोई लड़ाई भी होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई आर्ग्यूमेंट भी होता है, तो आप उसको ज़्यादा दिल पर नहीं लेते, चित्त पर नहीं बिठाते, मन पर नहीं बिठाते, अपना दिल ख़राब नहीं करते. आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को उधर छोड़ देते हो.
पर आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करते या रिलेशंस को ख़राब नहीं करते, तो आप बड़े सुलझे हुए इंसान नज़र आ रहे हो. एंड इनफैक्ट आपका जो टेम्पर है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, टेम्परामेंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आपको. जल्दी से एज सच ये नहीं है कि गुस्सा आ गया, मैंने ऐसा ऐसा कह दिया, फिर बाद में रिग्रेट करे कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया. वो नहीं है कि भाई मुंह से निकल गई बात, मन में तो नहीं थी. लाइक यू आर नॉट डूइंग दैट. आप मन से भी बहुत साफ नज़र आ रहे हो और ज़बान से भी बहुत क्लियर और मीठे नज़र आ रहे हो. So that's what we see here. And you want to provide for your family, you want to provide for your loved ones, you want to give. आपकी एक टेक वाली एनर्जी, मतलब लेने वाली एनर्जी नहीं है, देने वाली एनर्जी, आप कुछ ना कुछ दे ही रहे हो. सो आपकी गुड विल रिलेशनशिप्स में नज़र आ रही है. अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इन द नेक्स्ट 6 months, pile number 2. So we have the 3 of cups. Beautiful. Like 3 of cups here shows, I mean, you are having a good time, you are happy. आप अकेले भी खुश हो, आप दूसरे लोगों के साथ भी खुश हो. खुशी जो है, आप खुशी की खुराक खा रहे हो. अगर खुशी नहीं है तो बढ़िया बढ़िया खाना भी खा लो, क्या पता वो डाइजेस्ट ही ना हो, वो आपको लगे ही ना. पर अगर आप खुश हो और एक सूखी रोटी भी खाते हो तो वो भी आपको फुल न्यूट्रिशन देगी. खुशी वो पावर है, खुशी वो मेडिसिन भी है. Laughter is the best medicine. We say, na, laughter is the best medicine. So there is lot of joy, laughter on the cards for you. जिससे यही शो होता है कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, hence आपका फिजिकल बॉडी बहुत अच्छा है. वैसे एक फिजिकल बॉडी के लिए भी हम यहाँ पर एक कार्ड पुल आउट करते हैं. वैसे ऐसी कि फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नज़र आ रही है. We have the justice card. Justice is now being served. Pile number 2, आपकी ये शिकायत नज़र आ रही है अभी प्रेजेंट में या थोड़ा पास्ट में कि भाई मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं खाना भी बहुत अच्छा खाती हूँ, मैं सोचती भी अच्छा ही हूँ, मैं स्ट्रेस टेंशन नहीं लेती, फिर मेरी बॉडी क्यों बीमार है. So the justice here shows that justice is going to be served. अब इतने साल आपने नेगेटिव सोचा, गलत मलत खाया, उसका रिजल्ट अभी आपको इस वजह से वो मिल रहा है. पर अब जो आपने थोड़ा पास से अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया और कॉन्शियस लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया, पॉजिटिव माइंडसेट रखना शुरू कर दिया, ग्रजेस छोड़ दिए दूसरों के अगेंस्ट, तो आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल तो जी रहे हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल तो आप ज़रूर जी रहे हो. पाइल नंबर 2. और अब आपको इसका रिजल्ट आपकी बॉडी देना शुरू करेगी. इन द नेक्स्ट 6 months यू विल नोटिस कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो जा रहे हैं, वो आपको तंग नहीं कर रहे हैं और आप खुश ज़्यादा रह रहे हो, क्योंकि खुश रहने की आदत आपके अंदर पड़ चुकी है. ये जैसे भी सिचुएशन, आई एम गोना बी हैप्पी, खुश रहने की आदत आपको पड़ चुकी है. पहले दुखी रहने की आदत थी, अब खुश रहने की आदत है. अब आप देखोगे इन द नेक्स्ट 6 months की जो आपने खाया पिया बढ़िया बढ़िया, जो आपने सोचा बढ़िया बढ़िया, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है. यानी एक पॉजिटिव माइंड बॉडी, हेल्दी माइंड बॉडी आपकी सोल इंजॉय करेगी. सो जैसे देर इज़ अ कार्ड इन वन ऑफ द डेक जिसके अंदर लिखा हुआ है ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस. क्यों? क्योंकि जो हमारी सोल है वो उस बॉडी में रहती है ना. हम तो सोल है, बॉडी अलग है. बॉडी नॉन लिविंग है, इनफैक्ट हमारी सोल लिविंग है. और क्योंकि हमारी सोल इस नॉन लिविंग बॉडी में है तो ये बॉडी लिविंग बनी है. यानी हम इसको बनाते हैं लिविंग, हम इसके कंट्रोलर हैं, हम इसमें जो चाहे वो डाल सकते हैं, खाना पीना हो या अच्छे थॉट्स से इस बॉडी को चला सकते हैं. तो यू हैव एक्चुअली ऑलरेडी स्टार्टेड टू ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस. एंड नाउ वो जो पैलेस जैसे चमकता है, वो चमक आपके अंदर नेक्स्ट 6 months में आपको दिखेगी. आपकी बॉडी आपको तंग नहीं करी, आपकी बॉडी आपको लाइफ इंजॉय करने दे रही है. सो दैट्स ब्यूटिफुल, दैट्स अमेजिंग. And last but not the least for you, pile number 2, what message spirit wants to give you for the next 6 months? Okay, we have intuition and we have knowledge as well. अभी हम यही बात कर रहे थे कि you're buying books, you're being more knowledgeable. We have the hermit as well. It shows that old wise person. You're becoming that. You're an old soul, pile number 2. So आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज आ रही है. आप नॉलेज पर अपना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो. आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हमने अगेन इस मून कार्ड को लेकर भी बात करी थी. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आई डिड सेड दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर. बट या इन जनरल एज वेल इन द नेक्स्ट 6 months you should trust your intuition. And you are the seeker of knowledge, that's for sure. यहाँ पर लिखा है seek knowledge. You are a seeker of knowledge.
यू आर अ ब्राह्मण. ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो जो नॉलेज लेना चाहता है, गेन करना चाहता है. सो ज्ञान धन आप ज़रूर अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो, ये ज़रूर नज़र आ रहा है. All right, pile number 2. So yeah, that was it. This was the reading for you. And astrology के लिए अगर हम देखें तो yes, sign of क्या था? Yeah, sign of Taurus, sign of Gemini, sign of Virgo because we have Hermit, sign of Libra because we have Justice. Justice जैसे Libra का symbolism scales का है, तो that's why Justice card है, तो even Libra is prominent. And Scorpio, yeah, intuition, tarot, astrology, occult, mysticism, 8th house related चीज. So yeah, ये signs. और फिर Taurus में we have the nakshatra of कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई साइन में, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में, स्वाति, विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो ये साइंस, ये नक्षत्र यहाँ पर प्रोमिनेंट है. इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, सन लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा. एंड जुपिटर कैन ऑल्सो बी योर आत्माकार का पाइल नंबर 2, या फिर जुपिटर इज कंजंक्ट योर आत्माकार का, चरा आत्माकारका, या जुपिटर इज एस्पेक्टिंग योर चरा आत्माकारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर 5-9 प्लेसेस में है आपका आत्माकारका और जुपिटर. लेट्स से आत्माकारका इज इन द 5th हाउस, तो जुपिटर 1st या 9th हाउस में प्लेस होता है. ऐसी प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में नज़र आ रही है. पाइल नंबर 2. एंड ऑल्सो मर्करी इज ऑल्सो सीकर ऑफ knowledge, information. So Mercury can also be your आत्माकारका. Mercury Jupiter का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो, अगर ये कंजंक्शन विद इन 10 डिग्रीज है ना, तभी हम इसको कंजंक्शन मानेंगे. अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक 2 planets सिटिंग इन द सेम हाउस, तो वो इतना अफेक्टिव नहीं है. बट अगर विद इन 10 डिग्री मर्करी जुपिटर आपके चार्ट में कंजंक्ट है, जो कि आई फील इट्स देयर, मर्करी जुपिटर का कंजंक्शन है D1 या D12 या D9 नवंशा चार्ट में, तो it does show that you're a bookworm or you're becoming a bookworm. Basically, you're becoming someone who is going to read a lot, who is going to get a lot of information, knowledge within them. So that's there. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And I, like, in the beginning of the reading, I did say कि भाई astrology, occult, mysticism, tarot, इन चीज़ों में भी interest है. And I also said law. तो law का कार्ड भी यहाँ पर है यार, law लिखा हुआ है. So yeah, that again matches. So yeah. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst, the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can check them out. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो नाम है वो QRSTUVWXYZ, आपका नाम इन लेटर्स से शुरू हो सकता है. That's why you chose pile 3. Let's get started with your reading. Okay, we already have a card. Don't worry, मैंने पहले भी shuffle करे थे cards. So next 6 months आपके कैसे रहने वाले हैं? What can you expect in the next 6 months? How life is treating you? What are you doing in the next 6 months? उसके लिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है. Temple, it says inner being, it says visualization, it says sacred space. So it does show कि next 6 months में pilgrimage travel यहाँ पर हो रहा है. कुछ 1-2 रीडिंग पहले एक पाइल में आई डिड सेट के कोई पिलग्रमेज ट्रैवल हो रहा है. सो इफ़ यू वर फ्रॉम दैट पाइल एंड अगेन यू चोज अ पाइल जहाँ पर अगेन टेम्पल कार्ड है, डिफरेंट डेक से वो इन्फॉर्मेशन थी खैर, बट आई हैव सेट दिस इन वन ऑफ द रीसेंट रीडिंग्स कि कोई पिलग्रमेज ट्रैवल हो रहा है.
So for you, pile 3, yes, some pilgrimage travel is there. You're visiting some religious or spiritual place and you're really liking it there. आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको एक पॉजिटिविटी आ रही है, आप बड़े खुश वहाँ पर हो. इनफैक्ट you're also crying, बट वो आंसू खुशी के है, वो दुख के नहीं है. एंड योर इंटुइशन इंक्रीसेस व्हेन यू गो टू दैट प्लेस, और आप बहुत चार्ज होकर आते हो, रिजुविनेट होकर आते हो. एंड ये सीक्रेट स्पेस इनर बीइंग ये भी शो कर रहा है. एक होता है बाहर की दुनिया, एक होती है अंदर की दुनिया. बाहर की दुनिया तो ऑफकोर्स जहाँ पर वर्ल्ड है, कुछ लोग काम करें. एक होता है इनर वर्ल्ड, अंदर की, हमारी अंदर की दुनिया, यानी हमारी कॉन्शियसनेस. आपकी कॉन्शियसनेस रियलिटी के साथ इन टच है. आप प्रैक्टिकल हो इन द नेक्स्ट 6 months. आप जो प्लान सबकॉन्शियसली क्रिएट करते हो उनको आप सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हो. और सीक्रेट स्पेस अगेन इट शोज दैट यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी लाइक अ टेम्पल. यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी रियली वेल. आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हो, समय पर खाना दे रहे हो. इट इज़ सेड, ये मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि अगर हम लेट्स से 9 बजे खाना खाते हैं हर रोज़ और किसी दिन हम 10 बजे खाना खाएं तो वो 1 घंटा डिले हो जाए खाने में तो हमारी बॉडी 13% स्ट्रेस में आ जाती है. सो इट शोज़ कि विद दिस कार्ड आप समय पर अपने आप को खाना दे रहे हो, अपने आप का टेक केयर कर रहे हो. जैसे टेम्पल में जो देवी देवताओं की जड़ चित्र होते हैं तो उनको समय पर खाना बड़े प्यार से खिलाया जाता है, बड़े श्रद्धा से खिलाया जाता है, समय पर हर चीज़ होती है. तो आप भी अपने लिए समय पर, अपनी फिज़िकल बॉडी के लिए, अपनी फिज़िकल फिटनेस के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए समय पर चीज़ें कर रहे हो. जो चीज़ें आपको खुशी देती है, जो चीज़ें आपको एनर्जी देती है, आप वो करते हुए नज़र आ रही हो. ट्रीटिंग योर बॉडी लाइक अ टेम्पल. आप अपने आप को सजा भी रहे हो, आप अपने आप का बड़ा टेक केयर करो. एंड आई डू सी विद द टेम्पल हियर, आप अपने आप को एक न्यू लुक में लेकर आ रहे हो, एक न्यू अपीयरेंस आपकी आ रही है. यू आर गेटिंग सम न्यू हेयर कट डन और हेयर कलर डन. यू आर बाइंग न्यू क्लोथ्स जो अब आपके स्टाइल को मैच करते हैं, आपके माइंड सेट को कपड़े जो मैच करते हैं वो कपड़े आप ले रहे हो और वो कपड़े आप पहन रहे हो. इनफैक्ट यू आर बाइंग न्यू वॉच इन द नेक्स्ट 6 months, क्योंकि एक समय बदल रहा है आपके लिए. आप वो उस तरह के गेटअप में आ रहे हो जो आपका मेंटल गेटअप है, सेटअप है. तो आप अपने आप को फिजिकल बॉडी को भी चेंज कर रहे हो बाय वियरिंग क्लोथ्स विच सूट्स यू नाउ, सूट्स योर मेंटल स्टेट. तो इवन द कलर्स यू आर गोना चूज़, वो शायद आपने कलर्स पहले इतने ज़्यादा ना पहने हो, अब वो कलर्स की चीज़ें आप ले रहे हो. एंड यू आर लाइक कि पहले क्यों मैं ये कपड़े या इस तरह के कलर्स या इस तरह के स्टाइल्स नहीं पहनता था या पहनती थी. सो यू आर चेंजिंग योर वार्डरोब, यू आर चेंजिंग योर होल लुक. सो आपकी खुद की रेनोवेशन हो रही है इन द नेक्स्ट 6 months. देन वी हैव थ्रेशहोल्ड. इट सेज परसेप्शन, सरेंडर, डिसॉल्व, illusion. So especially with this threshold card, I see like we see the UFOs and it shows कि आपके चार्ट में मून राहु का कंजंक्शन हो सकता है, सन राहु का कंजंक्शन हो सकता है, या सन केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मून केतु का कंजंक्शन हो सकता है. मून या सन को केतु या राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली एक एक्लिप्स्ड है आपका मून या सन, जो कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज देता है. और आपका अगेन इंटरेस्ट जो है अननोन चीज़ों में बहुत है, लाइक UFO, एलियन थ्योरीज, मर्डर मिस्ट्रीज, ये स्टिल अभी हमारे लिए अननोन है. स्पेशली एलियंस, इवन एस्ट्रोलॉजी, इवन द डेप्थ ऑफ ओशन इज स्टिल 80% ऑफ द ओशन इज स्टिल वी डोंट नो व्हाट्स देयर. वो इतना एक्सप्लोर नहीं करा, आउटर स्पेस इतना एक्सप्लोर नहीं करा, एलियंस के बारे में इतना नहीं पता. खैर US गवर्नमेंट को ज़रूर पता होगा कुछ ना कुछ तो. बट like what I'm trying to say is कि you are not scared of unknown. You want to get to know what is the unknown, what is alien, what is UFO, what is astrology, why it works. तो क्यों के सवाल आपके अंदर बहुत है. इस वजह से आप इन सब चीज़ों की नॉलेज लेते हुए नज़र आ रहे हो और अपने इल्यूजन्स या अपनी क्वेश्चंस को डिज़ोल्व कर रहे हो. इनफैक्ट यू आर लाइक गेनिंग इन्फॉर्मेशन, दैट्स वो क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं और वो फुल स्टॉप में बदल रहे हैं क्योंकि आपके पास आंसर्स आते जा रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड जैसे यू आर ऑल्सो गेटिंग इंटरेस्टेड इन हिप्नोसिस. तो क्यों हिप्नोसिस जो है वो वर्क करता है,
कहीं ऊपर करता है कहीं ऊपर नहीं करता है, ऐसा क्यों, मतलब इन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मेरे पास लाइफ में क्या हुआ था, तो आप ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपके पास लाइफ के बारे में हो, कि हम अपने पास लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं। लाइक इन एस्ट्रोलॉजी देयर आर मेनी एस्ट्रोलॉजर्स हु हैव रिटन 12th हाउस रिलेटेड थिंग्स, मतलब 12th हाउस ही पास लाइफ है, सबकॉन्शियस माइंड है, आउटर स्पेस भी है, हमारी अंदर की स्पेस अगेन अगेन सबकॉन्शियस भी है। तो कई एस्ट्रोलॉजर्स ने लिखी है वैसे 12th हाउस पूर्व जन्म की को हम कैसे जान सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन ऑफकोर्स गेट सम बुक्स अबाउट इट। तो मतलब आप अपने पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश भी कर रहे हो, इस वजह से क्यों मेरी आज लाइफ ऐसी है, तो यू आर लाइक वांट टू गेट टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ। तो वो कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर आपके नज़र आ रहे हैं, और इंटरेस्ट के बारे में नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो। Then we have the mystery card. It says revelations, discovery, secrets, unveil. What did I said? You are definitely interested in things which are unknown, जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानने की इतनी कोशिश नहीं करते हैं और ना इंटरेस्टेड होते हैं, अंदर ही अंदर इंटरेस्टेड है तो बहुत बिजी है उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। वाई एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, वाई टैरो वर्क्स, वाई देयर आर एलियंस, क्यों इतने सारे धर्म आए, क्यों भगवान ने इतने अवतार लिए, अगर कोई इतना पावरफुल पर्सनालिटी है भगवान तो एक ही बार में क्यों नहीं सब कुछ ठीक कर देता है, इतने अवतार क्यों लिए। सो इट कैन बी लाइक दीज थिंग्स, मतलब जो क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं, आपको लगता हो या दूसरे लोग कहते हो कि ये तो रेटोरिकल क्वेश्चन है, इनका कोई आंसर ही नहीं, बट देन यू रियलाइज कि रेटोरिकल नहीं है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। देन यू स्टार्ट टू गेट टू यू बिकम मोर इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बाय लर्निंग, बाय रीडिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो आप खुद सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हो, आप खुद डिस्कवर कर रहे हो चीज़ों को, रिवील कर रहे हो चीज़ों को, सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं आपके सामने, एंड यू आर अनवीलिंग, यू आर गेटिंग टू नो अबाउट थिंग्स जो सभी को लगता है कि बड़े रेटोरिकल है, इनका कोई जवाब नहीं है, बट यू रियलाइज इनका जवाब है, इनका जवाब है। अगर आप इनके बारे में स्टडी करो, रिसर्च करो, जवाब ज़रूर है। यू आर अ वेरी गुड रिसर्चर। पाइल नंबर 3, यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट माघा नक्षत्र, यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट मृगशिरा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। ये जो मृगशिरा ये टॉरस जेमिनाई में होता है, माघा लियो में होता है, अनुराधा स्कॉर्पियो में होता है। तो ये इन साइंस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे, नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। And even getting to know about why dinosaurs are not there anymore. So बहुत interesting आपके यहाँ पर questions है, queries है, and you're able to get the answers on your own by researching about it. तो ये चीज़ें बड़ी अनऑर्थोडॉक्स, बात ही वियर्ड एंड अनकन्वेंशनल आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूसरे लोग आपको ऑफकोर्स वियर्ड कह सकते हैं, बट इट जस्ट दैट यू आर अ वेरी क्यूरियस बीइंग एंड यू हैव द टाइम एंड एनर्जी to get to know about these things. So even the sign of Pisces can be prominent in your chart, or Aquarius sign can be prominent. मतलब पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, ये काफ़ी prominent नक्षत्र आपके चार्ट में होंगे, यानी इन नक्षत्र में planets ज़रूर placed होंगे आपके चार्ट में। And let's get some more info about next 6 months of file number 3. We have flow here. We have the moon, we have the flow card, यहाँ पर भी we have the moon, in fact full moon. So it does show with the full moon, जो मून की एनर्जी है ना वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। इनफैक्ट जो पूर्णिमा है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जब पूर्णिमास आएंगी, आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो उन दिनों में अपने रिसर्च को लेकर। यू कैन इवन डू सम फुल मून रिचुअल्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फ्लो कार्ड अगेन यही शो करता है आप एक फ्लो में हो, आपका एक फ्लो बना हुआ है, एक इंटरेस्ट बना हुआ है, और वो फ्लो टूट नहीं रहा है, आपका कनेक्शन बना हुआ है, एक इंटुइटिव फ्लो आपका बना हुआ है, वो फ्लो, वो इंटरेस्ट टूट नहीं रहा है। Then we have miracles. So you are doing some miraculous discoveries and you're also telling other people, but telling other people जो आपने डिस्कवर कर, बहुत कम लोगों को आप वो चीज़ें बता रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बता रहे हो, but you get to know real secrets of the world, of astrology, occult mysticism as well. Even आपका इंटरेस्ट pyramids, Egyptian things, इन चीज़ों में भी हो सकता है। मतलब unorthodox, you're really a very unique person. File number 3, आपका thought process बहुत 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 different है,
टेस्ट बहुत डिफरेंट है. 90% दुनिया को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो आपको नहीं अच्छी लगती, और जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है वो 90% दुनिया को अच्छी नहीं लगती है. सो यू आर really a unique being on your own. We have the family room in terms of your family life, yeah, in terms of your personal life. तो family room का card it does show you do have a good relationship with your parents, you do have a good relationship with your sibling, even though आपका belief system उनसे बहुत ज़्यादा different है, but still जो next 6 months है आप दूसरों के नेचर को अपने अंदर समा लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस का आप बहुत यूज़ करते हो, और आपका फैमिली आपको भी, आपकी फैमिली आपको भी एक्सेप्ट कर रही है, आपको रिजेक्ट नहीं करी, आपके थॉट प्रोसेसेस को रिजेक्ट नहीं करी, वो आपको समझने की कोशिश कर रही है. तो उनकी एनर्जी आपकी तरफ एक्सेप्टेंस की और समझने की, और आप भी उनको एक्सेप्ट करते हो और उनको समझते हो. तो फैमिली सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर आपके लिए नज़र आ रहे हैं. And we have, and also like we have 2 and 1. 2 and 1 again it's 3. तो अगर आपके siblings हैं या cousins हैं तो next 6 months में उनके साथ आपका relationship बहुत strong नज़र आ रहा है. Then we have false person and we have the number 8. Number 8 again, sign of Scorpio, 8th house, certain things, mysticism, things which are hidden. False person यहाँ पर यही show कर रहा है that you are able to see things, you are able to see the bluff. ये भी दूसरा ब्लफ खेल रहा है, नहीं दूसरा फुकरी मार रहा है, डिंगो के पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, जो वो नहीं है वो शो कर रहा है. मतलब आप दूसरों का ब्लफ कैच कर पाते हो. यू कैन ऑल्सो बी अ मूला पर्सन, पाइल नंबर 3, लाइक योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका ascendant ascendant or some major planet can be in the sign of Sagittarius in मूला नक्षत्र. मूला पीपल आर द पीपल जिनकी नज़रों से कुछ नहीं बचता. मतलब उनकी नज़रें ऐसी होती है मूला इंडिविजुअल की, जो सच देख लेता है दूसरे का, झूठ पकड़ लेता है दूसरे का, और सच्चाई क्या है इसको पता लग जाता है. सो यू हैव, आपके अंदर वो एक परख शक्ति बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, स्पेशली नेक्स्ट 6 months में तो और भी स्ट्रांग नज़र आ रही है परख शक्ति. और एबल टू सी हु इज़ द फॉल्स पर्सन, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. जो आप डिस्कवरीज भी करो, ऐसे तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे बट आप विश्वास उसी ऑथर पर करोगे जो लगता है कि हाँ भाई ये लॉजिकल है और ऐसा हो सकता है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो बहुत है ना दुनिया में, नॉलेज तो बहुत है दुनिया में. आप किसको एक्सेप्ट करते हो वो आपकी परख शक्ति पर है. तो आपकी परख शक्ति यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है. You're able to see things clearly. You're able to get to know what is right and what is wrong. Let's pull some specific cards in terms of your career, finance, health. Pile number 3. कुछ specific cards pull करेंगे जिस भी stage of life पर आप हो. Pile number 3. एजुकेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट 6 months के लिए. All right, we have 10 of Pentacles, such a powerful, wonderful card. 10 of Pentacles करियर में बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि पेंटिकल्स मनी की एनर्जी है, और 10 ऑफ पेंटिकल भरपूरता मनी की दिखाता है, भरपूरता अपॉर्चुनिटीज़ की दिखाता है. आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल रहा है, अपने आप की स्किल्स दिखाने का मौका मिल रहा है, सोसाइटी में अपना नाम ऊंचा करने का मौका मिल रहा है, और आप उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहे हो. एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आपके जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, वो आपसे काफ़ी खुश, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आ रही है एजुकेशन में. अगर जॉब में हो तो आपके बॉसेस जो हैं आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं, या आपके जो कलीग्स हैं वो आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, और वो आपको ग्रो करते हुए देखकर खुश है, जेलस नहीं है. 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है आप मुश्किल से मुश्किल टास्क भी कर लेते हो परफेक्शन के साथ, और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि आपको दूसरी सीट्स का काम नहीं करना पड़ रहा, आप अपना ही काम करो और उस काम का आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, उस काम का आपको क्रेडिट मिल रहा है, एंड यू आर रियली हैप्पी विद दैट क्रेडिट, विद दैट फेम, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग एक्स्ट्रा इनकम फॉर इट. और अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो, स्पेशली अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा कर पा रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हो. 10 ऑफ पेंटिकल्स इज द कार्ड ऑफ whatever पॉजिटिव थिंग यू वांट इन योर करियर, वो चीज़ हो रही है. सिंपल, जो भी चीज़ आप अपने करियर में चाहते हो नेक्स्ट 6 months में वो हो रही है. बिजनेस जो है आप बहुत लोगों तक पहुंचा पा रहे हो. सो दैट्स देयर.
जो भी आप चाहते हो अपने करियर में वो हो रहा है. 10 ऑफ पेनिकल्स इज अ येस कार्ड, वो पॉजिटिव चीज़ हो रही है. अबाउट योर फाइनेंसेस, सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ वॉन्ड्स शो करता है दैट यू आर अट्रैक्टिंग मनी. वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है. यू आर द मनी अट्रैक्टर. यू आर एबल टू अट्रैक्ट गुड अमाउंट ऑफ मनी. यू आर एबल टू अट्रैक्ट, जैसे जो आपने काम करा है, लेट्स से आपने 50% अपना एफर्ट लगाया तो आपको उसका 100% रिजल्ट मिल रहा है, 100% उसका मनी मिल रहा है. कम एफर्ट में ज़्यादा मनी आप अर्न कर पा रहे हो. ये वो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो समवन इन योर फैमिली इज अर्निंग, उनका मनी इस तरह से आ रहा है कि भाई अगर वो 100% भी अपने काम में नहीं दे रहे तब भी उनको 40-30% ही अपना एफर्ट करें फिर भी उनको 100% उसका मनी मिल रहा है. कुछ ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर आप लोग मनी अपनी तरफ ईजीली अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि इट्स द किंग ना. किंग के पास तो पैसे होते ही हैं, वो तो रिच होता ही होता है. उसके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं. तो आपके खुद के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं या फिर यू आर एबल टू अट्रैक्ट मनी क्वाइट ईजीली. सो मनी वाइज जो अगर आप प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो वो यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आ रही है. अबाउट योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ पाइल नंबर 3, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. अगेन एकाग्रता की शक्ति आपके अंदर बहुत है, पावर टू फोकस बहुत है. और जब हम फोकस करते हैं एक चीज़ पर तो यानी दूसरे थॉट्स नहीं चल रहे ना, एक ही थॉट पर फोकस है. और इसी को मेडिटेशन कहते हैं. जब हम एक चीज़ पर फोकस करते हैं तो यही मेडिटेशन है. कोई वेस्ट थॉट्स नहीं चल रहे, नेगेटिव थॉट्स नहीं चल रहे, बार बार हम वही एक थॉट पर ही हमारा टिका हुआ है माइंड. तो एस ऑफ वॉन्ड्स यही शो करता है एकाग्रता की शक्ति. एक टिकाव है आपके अंदर, टिक के बैठे हुए हो आप, मन आपका टिका हुआ है एक जगह, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है या वो डिससेटिस्फाइड नहीं है. आप बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो मेंटली. एक फिजिकल बॉडी का भी हम कार्ड एक निकालते हैं. यहाँ तो मेंटल हेल्थ भरपूर नज़र आ रही है. एक ज्योति जगी हुई है. जैसे दिवाली को हम दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो क्या हमारे अंदर का दीपक जला हुआ है? क्या हमारे मन का दीपक जला हुआ है? इसका मतलब है कि क्या हमारी आत्मा इन दीप की तरह टिमटिमा रही है? कि जितनी आत्मा पावरफुल होगी, स्ट्रांग होगी, उतनी वो ज़्यादा ब्राइट चमकेगी. तो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आपकी सोल में बहुत पावर है. और पावर जो है वो नॉलेज से है. आत्मा का खाना जो है वो नॉलेज है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज. तो वो आप कहीं ना कहीं गेन कर रहे हो इन द नेक्स्ट 6 months. इस वजह से आपकी आत्मा और भी ज़्यादा चमक रही है. एक आपका जो ऑरा भी है ना, बड़ा लाइट और अट्रैक्टिव हो रहा है. इस वजह से जो पावरफुल भरपूर आत्मा होती है वो अपने आप अपनी तरफ वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती है जो दूसरों को चाहिए. लाइक एवरीवन वांट्स मनी, एवरीवन वांट्स गुड रिलेशनशिप्स, बट जो आत्मा खुद बहुत भरपूर है उसके पास ये हमेशा ऑटोमेटिक होगा. तो आपके पास भी ये हमेशा ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 6 months. ये नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे, आपके परिवार के साथ. अगेन आई फील पाइल 3 यू आर समन जिसको अपने परिवार से शिकायतें हैं, बट नेक्स्ट 6 months में जो है वो शिकायतें नहीं नज़र आ रही है. आपका रिलेशनशिप इनफैक्ट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है अपने परिवार से, अपने लव्ड वंस से. आपकी शिकायत ये रहती है पाइल 3 कि मेरे को मेरा परिवार समझता नहीं, या मेरे को वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, या मेरे को ऐसे कुछ शब्द कहते हैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है. वो जो रिलेशन है वो यहाँ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप पावरफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सोल पावरफुल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज भर रही है. और नॉलेज से आप मनी अपने आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो और अच्छी सिचुएशंस अपने करियर में अट्रैक्ट कर पा रहे हो, अच्छी चीज़ें अपने करियर में अट्रैक्ट कर पा रहे हो. हमें अगेन योद्धे नहीं योगी चाहिए. योग लगाने वाले, मेडिटेट करने वाले, एक ही चीज़ पर फोकस करने वाले. लड़के कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि भगवान भी अहिंसा परमो धर्म है, या अहिंसा परमो धर्म रचता है. उसका रचयिता, अहिंसा का रचयिता हिंसक नहीं होता है. भगवान योद्धा नहीं है पर योगी भी है. आई मीन योगी ही है. योग से, योग बल से, ना कि बाहुबल से. सो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो काफ़ी बैलेंस्ड है. अगेन जैसे पर्सन एक डंडी पर ही चल रहा है, इनफैक्ट एक स्वॉर्ड पर चल रहा है. सो इट डज शो कि एक जो अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर या उस भगवान के ऊपर, एक बल एक भरोसा, यानी भगवान एक है,
उसकी वजह से हमें बल है और उसके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। जहाँ पर भी भगवान डालेगा बिल्कुल सोच समझ के ही डाल रहे हैं, तो कोई एज सच शिकायत नहीं या क्वेश्चन नहीं कि ऐसा क्यों भगवान मेरे साथ किया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऑफ सरेंडर्ड योर सेल्फ। ये थ्रेश होल्ड के कार्ड में भी सरेंडर लिखा हुआ है। सो हैव रियली सरेंडर्ड योर सेल्फ टू द डिवाइन। जो भी भगवान दिखाना चाहे मैं देखने को तैयार हूँ और मैं देखूंगा या देखूंगी ही। सो इवन ये पर्सन के हाथ में बुक है, अगेन यू आर रीडिंग अ लॉट, यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजेबल, यू आर रिसर्चिंग अ लॉट, यू कैन सर्च ऑन वेब एज वेल। दिमाग की बत्ती पूरी जली हुई है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो कर रहा है, स्पेशली हेल्थ के बारे में कार्ड आया तो, कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है। आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बन रहा है आपके लिए। आप अपनी लाइफ जैसे जीना चाहते हो वैसे आप जी पा रहे हो। आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ। इनफैक्ट आपका जो बॉडी का बैलेंस है, जिसको हम योगा कहते हैं, योगा करना, प्राणायाम योगा करना, वो योगा का भी जो एक्टिविटीज़ होती है, बैलेंसिंग, ऐसे आसन होते हैं योगा में जो बैलेंस दिखाते हैं कि हमारी बॉडी कितनी बैलेंस है, बैलेंस में रह सकती है, एक ही पोजीशन में कितनी देर रह सकती है। सो आपकी वो बैलेंसिंग की ताकत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो कि शो करता है आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यहाँ पर इन्फो है, मैसेज है स्पिरिट से। सो वी हैव द आउल, इट सेज फॉलो योर इंट्यूशन। सो या यू शुड फॉलो योर इंट्यूशन। एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है पाइल नंबर 3 आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। एंड आउल कार्ड, आउल को वैसे तो भारत में आउल के बारे में ये कहते हैं कि रात को कोई जाग रहा हो, उल्लू हो तुम, बट आउल इज़ रियली अ वाइज बर्ड, एनिमल, जो भी, मतलब आउल इज़ रियली वाइज। So you are becoming wise, pile 3. You are becoming someone जो देख पाता है रात के अंधेरे में भी, बेसिकली देख पाता है सच्चाई क्या है, अंधियारे में भी सच्चाई क्या है, या डार्कनेस को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अज्ञान जो है वो भी डार्कनेस है। तो अज्ञानी दुनिया में ज्ञान को देख पाना, सोने को परख पाना, वो ताकत आपके अंदर ज़रूर नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट 6 months. सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन और दिस इज़ द गाइडेंस की या फॉलो योर इंट्यूशन. So that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically अगर हम देखें तो of course sign of Scorpio तो यहाँ prominent है ही. Even sign of Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, and the sign of Aquarius and Pisces ये prominent है. Gemini में we have मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्या, अश्लेषा. फिर स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. पाइसीज में और एक्चुअली एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भद्रवदा. फिर पूर्व भद्रवदा स्पिल करता है पाइसीज में, उत्तर भद्रवदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग आत्माकार का, सेनेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या D12 चार्ट या D9 नवंशा चार्ट में. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. And even I will say you can visit in the next 6 months, you can visit Rajasthan, you can visit some pilgrimage, some spiritual place. You can even visit Shimla. I don't know why I'm saying this, but even Shimla. जहाँ historical places है वहाँ पर आप ज़रूर जाते हुए नज़र आ रहे हो in the next 6 months. All right. So yeah, that was it. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, pile number 3, subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst, and also I'm wearing the C set, which consists of malachite, clear quartz, and the blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.